Hi guys, welcome back to the channel and welcome in day 21 and yeah, this is the question that we have taken today. Okay, so assume that effective address A. So क्वेश्चन पढ़ने से पहले सबसे पहले जो लोग पहली बार देख रहे हो यार, ऐसे अच्छे क्वेश्चन हम कर रहे हैं अपनी इस सीरीज में गेट के लिए। तो सीरीज को फॉलो कर लो पूरा 100 क्वेश्चन से एटलीस्ट हम करेंगे इसमें। 100 डेज का हमने चैलेंज लिया कि डेली एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। दैट इज द कंसिस्टेंसी प्लस टू मेक द प्रैक्टिस रिवीजन मोर इफेक्टिव वी आर डूइंग दिस। ओके, सो 100 डेज का चैलेंज है, आपका साथ रहेगा इस पे और आप हर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी सीओए चल रहा है, सीओए बहुत टफ सब्जेक्ट होता है और सीएन भी, सो वी आर डूइंग दैट। ओके, क्वेश्चन पढ़ते बिना किसी देरी के वीडियो को लाइक कर देंगे, कमेंट कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे अगर पहली बार आ रहे हैं तो। क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन बहुत लंबा चौड़ा है, आंसर बहुत इसका छोटा सा है। assume that effective address ब्रैकेट में x प्लस लिखा है is the effective address equal to the contents of the location x। ओके, समझो। सो इफेक्टिव एड्रेस यहाँ पे x प्लस का मतलब क्या है? इक्वल टू द कंटेंट्स ऑफ लोकेशन x। ओके, विथ x इंक्रीमेंटेड बाय वन वर्ड लेंथ आफ्टर द इफेक्टिव एड्रेस इज कैलकुलेटेड। ओके, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? मतलब क्या है कि यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पता है आपको? तो यहाँ पे इफेक्टिव एड्रेस जो होगा, इफेक्टिव एड्रेस वो कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। फिर हम बाद में क्या कर देंगे? x इज इक्वल टू x प्लस वन कर देंगे। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस। ओके, नाउ आफ्टर द effective address calculated. Okay, effective address minus x is the effective address equal to the contents of location x with x decremented by one word length before the effective address is calculated. Okay, so what is the meaning of x? या x plus का मतलब क्या था? ये था। Okay, what is the meaning of the minus of x? That is the meaning of that कि we have to do x is equal to x minus 1, then effective address will be x. That is the meaning of this. Okay, now x effective address x minus is the effective address equal to the contents of location x with x decremented by one word. Okay, a length after the effective address is calculated. तो वही है हमारा x माइनस का मतलब क्या है कि हमारा इफेक्टिव एड्रेस कितना हो जाएगा? a हो जाएगा, x हो जाएगा पहले, फिर हमारा x जो हो जाएगा वो हो जाएगा x माइनस वन। दैट इज द इफेक्टिव एड्रेस। Okay, the format of the instruction is opcode source destination. I think we have missed something. We haven't missed something. Okay, which means the format of instruction is opcode source destination. Okay, so हम जानते हैं opcode हो गया एक हमारा, एक source हो गया हमारा, एक हमारा destination हो गया। This is our what you can say source and destination. Opcode source and destination. That is the meaning of the instruction. Okay, which means destination में हमारा जो होगा सोर्स ऑपरेंड डेस्टिनेशन जाएगा। ओके, तो हमारा ये वाला सोर्स है, ये वाला हमारा क्या है? डेस्टिनेशन है। समझेंगे इस चीज को अच्छी तरह से, राइट? यूजिंग x एज अ स्टैक पॉइंटर विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस कैन पॉप टू एलिमेंट्स फ्रॉम द स्टैक। ओके, सो यूजिंग x एज अ स्टैक पॉइंटर, हमारा स्टैक पॉइंटर जो होगा उसको हम यूज करके विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस कैन पॉप द टॉप टू एलिमेंट्स। ओके, so we have to what you have to think. We have to think that x is a stack pointer. Which of the following instructions can pop two elements, top two elements from the stack, perform the addition operation, and push the result back to the stack? Okay, that is a very quite interesting question actually. This is a previous year question. Okay, you know that what is the stack? Stack is what? You know that stack is what? Stack is first in, last out. Okay, so suppose that this is the 1000 address stack ka, this is the 1001 address, this is the 1002 address, this is the 1003 address. Okay, now suppose the content of this is 5, this is the 3. Okay, so what is the stack pointer? Can you tell me what is the stack pointer? Stack is always pointing to the empty slot. You can say empty slot. Stack is always pointing to the empty slot. Okay, suppose that we have only two things, two content in that stack. Okay, so this one is 3, this is 5. So stack always the content, sorry, the pointer will always point to the top of the address. Okay, so you know that जब भी हम इंसर्ट करेंगे टॉप पे ही करेंगे और जब भी हम हटाएंगे तो टॉप से ही हटाएंगे। मतलब जो हमारा फर्स्ट इन होता है वो क्या होता है? लास्ट आउट होता है। समझने की कोशिश करते हैं इसको। सो हमें करना क्या है? हमें टॉप के दो कंटेंट उठाने हैं और उसको डाल देना है, और इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा? ओके, so हमें पता है this one is the source, this one is the source, and this one is the destination. This one is the destination. All the things what you have to do, we have to just cross verify by putting the options. Okay, so what is the stack pointer? So x is 1001. X is what? 1001. So we have to take x is 1001
का 1 एंड वी हैव टू वेरीफाई ऑल दी ऑप्शंस, क्योंकि हमारा जो स्टैक पॉइंटर है वो क्या है, एक्स है। क्वेश्चन बोला है यूजिंग एक्स एज अ स्टैक पॉइंटर विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस कैन पॉप two elements from the stack, perform the addition operation and push result back to the stack. Okay, so let's see, 1001 हमारा स्टैक हो गया, टॉप हो गया। ओके, सो ए ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर ए चेक करते हैं, ठीक है। नाउ so the main thing is that we have to just understand the whatever question they are asking. Okay, add x minus, what is the meaning of that? We have to just face the content of x first. X minus का मतलब क्या है? We have to effective address what x, we have to face the content of x. What is the content of x? That is a memory address of 1000 का 1. Okay, stack pointer बोल सकते हैं। and दिस इज द सोर्स, दिस इज व्हाट सोर्स। एंड सेकेंड वन इज दैट एक्स। अब देखो हमारा जब x माइनस वन है तो x इज इक्वल टू एक्स माइनस वन हो चुका था, तो हमें जस्ट रेफर करना है x माइनस वाला, ये वाला। तो इफेक्टिव एड्रेस x हुआ था, x माइनस x कितना हो चुका था, x माइनस वन हो चुका था। अब यहाँ पे हमारा x कितना है, x माइनस वन, मतलब कितना हो गया, 1001 था। तो अब हमारा x इज इक्वल टू x माइनस वन जब हुआ था तो 1001 माइनस कितना हो गया, 1000 हो गया। देन व्हाट इज दिस, दिस इज अवर मेमोरी ऑफ 1000 and this is our what destination. Okay, so when we are using this instruction, what is that, that is the destination. Okay, so answer should be 5000 is memory of 1000 is equal to memory of 1001 plus memory of 1000. Okay, let's see. Okay, let's see. So you can see that when we are popping the elements, till now this is the stack pointer. When we will pop this element, this will become the stack pointer. Again we are popping this element, then this whole stack is empty and this one is the stack pointer. अभी हमारे स्टैक पूरा खाली है। ओके, सो हमारा जो 1001 होगा ना वो क्या होगा, स्टैक पॉइंटर होगा। तो यहाँ पे हमारा जो कंटेंट होगा वो जाएगा 5 + 3 और कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा 8। तो यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि जब हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं इंस्ट्रक्शन, उसके बाद हमारा स्टैक पॉइंटर भी चेंज हो रहा है। पहला हमारा स्टैक पॉइंटर क्या था, पहला हमारा 1001 था, बाद में कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। ओके, आगे अभी आप लोगों को डाउट होगा कि सर हमें दूसरा भी करके दिखाओ। दूसरा भी करके देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बी वाला देख लेते हैं करके, बी वाला। तो बी वाला क्या है, ऐड एक्स से पहले, ठीक है। हम देखो क्वेश्चन में मेंशन है कि ये सोर्स है, ये डेस्टिनेशन है। अगर आप कोई हमने शायद 1920 में बताया था कि पहला वाला डेस्टिनेशन होता है, यहाँ पे मेंशन है कि हमारा जो फॉर्मेट है ऑपकोड, सोर्स एंड डेस्टिनेशन का है, राइट। नाउ दिस वन इज दैट ऐड एक्स। व्हाट इज द एक्स, स्टार्टिंग में एक्स उसने क्या बोल रखा है, स्टैक पॉइंटर, दैट इज 1001। तो हमें क्या करना है, 1001 करना है। ओके, फिर हमें क्या करना है, फिर यहाँ पे भी 1001 यूज करना है, बाद में हमें डिक्रीमेंट करना है। तो दैट इज नॉट अ करेक्ट थिंग, हमें दोनों कंटेंट नहीं यूज करना है, दैट इज अ रॉन्ग आंसर। ओके, सी देखते हैं, सी ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं। ऐड बोल रहा है -x। ओके, ठीक है, -x यूज कर सकते हैं, -x, ठीक है। तो -x मतलब पहले में डिक्रीमेंट करना है, तो हम कर दिया, हमने 1000 कर दिया, ठीक है, कर दिया 1000। अब यहाँ पे बोल रहा है कि अगेन यहाँ पे 1000 यूज कर लो पहले, फिर बाद में प्लस करो। दिस इज द रॉन्ग आंसर। भाई जब हमने -x किया था 1000 हो गया था ना, हम अगेन 1000 यूज करेंगे बाद में। यहाँ पे मतलब क्या है इसका, पहले यूज करो फिर यहाँ पे करो, ठीक है। डी देख लेते हैं। डी बोल रहा है कि पहले क्या कर दो, पहले डिक्रीमेंट कर दो। तो मैंने कहा चलो डिक्रीमेंट कर दिया तो 1000 हो गया ऐड, और अगेन ये 1000 ही रहेगा फिर, तो ये भी गलत आंसर हो गया। सो व्हाट वी हैव टू रिमेंबर, वी हैव टू रिमेंबर दैट स्टैक पॉइंटर विल बी चेंज आल्सो, बिकॉज हमने हमारे पास पहले दो एलिमेंट थे, तो ऊपर वाला टॉप वाला स्टैक पॉइंटर था, नीचे वाला भी स्टैक पॉइंटर हो जाएगा। तो which answer is correct? So this answer, I think this answer is the correct answer. So you can check once whatever you are getting the answer, and the meaning of that is that upcode, source and destination we have to remember this one. So क्वेश्चन ना बहुत छोटे होते हैं एक्चुअली, सीओए में और सीएन में क्वेश्चन जो होते हैं, अगर थ्योरेटिकल नहीं आता है तो वो क्वेश्चन थोड़ा सा पेशेंस के साथ पढ़ने होते हैं और क्वेश्चन हमसे बन जाते हैं। Okay, so I hope you got it, and yeah, if you got it and you like that content, you have to just subscribe the channel, you have to just like the channel, and yeah, अगर कोई भी अगर डाउट हो, कोई भी कमेंट हो, आप यहाँ पे छोड़ देना कमेंट, हम देख लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।